Bismillahirrahmanirrahim. Uh, we have discussed the uh, different topics in agricultural processing engineering. First, we have discussed some uh, basic concepts or the basic equipments like pumps and fan, which is used for the pressurizing or provision of fluid at different points for different processing operations. Okay, that how you will select the required pump or the required fan if some amount of fluid is required for any processing operation. Then we have discussed the different processing operations like cleaning and sorting of agricultural product, material handling, heat transfer into the product or heat transfer from the product. Also, we have discussed the drying of agricultural product. Okay, so uh, these are some processing operation which we can apply to the agricultural product for the increasing the output value of the product, to increase the shelf storage life of the product, or to change the product from one form into another form. And at the end again, our prime objective or basic objective is to increase the output value. Okay, see, we have two types of the values. One is the production value, and second one is the income value. Okay, the product which we are getting from the field or farm, it will have some production cost. Okay, from the start, from the preparation of land up to the availability of the product in the market, उसकी ऊपर जो cost आ जाते हैं, that is called the production cost. Okay, उसमें suppose land preparation है, then we have the sowing cost, then we have the कॉस्ट एट द फील्ड जिसमें इरिगेशन कॉस्ट होते हैं, सपोज फर्टिलाइजर कॉस्ट है, उसमें लेबर कॉस्ट है, then we have the harvesting of the product. Okay, then we are suppose applying some processing operation, for example cleaning, drying, size reduction, and conveying the product from one point into another point. So different processing operations are involved, and at the end we are packing the product and we are supplying it into the market for the customers. So उसके ऊपर खर्चा आ जाता है ना, you will have to invest some amount from the start into the availability in the market. Okay, so that will be a kind of production cost. Then we are selling the product in the market. ठीक है, तो कस्टमर से हमें जो आउटपुट मिलता है, that is the output value of the product. So the production cost minus the, we can say that the output value minus the production cost, it will be a type of income. It will be a kind of profit, it will be a kind of benefit. Okay, so the key purpose of the applying of the agricultural processing operation is to increase that output value. Okay, now suppose if you have agricultural product, for example, if you are not applying into it the processing operation, just once you get the product from the field, you transfer it into the market और वहां पे उसको आप सेल कर लें, तो सपोज आपको जो यूनिट प्रोडक्ट है, सपोज 1 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम के पैकिंग है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट अमाउंट. So for example, if you are getting $10 per unit, okay, that unit will be, for example, as we have discussed, in term of either 1 kilogram or 5 kilogram or 10 kilogram, जो पैक होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक वेट होगा या स्पेसिफिक उसकी क्वांटिटी होगी. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फ्रूट्स, तो उसको हम काउंट करते हैं ना, दर्जन जो हम लेते हैं. ठीक है, so for example, without processing, the cost of the unit product is $10. Okay, directly you have transferred the product from the field or farm into the market and you are getting $10 per unit. Now suppose if you apply some processing operation, cleaning, drying, size reduction, etc.,
in its quality, suppose you have improved the quality of the product, and now, for example, in the market, you are getting $15 from the same product per unit. Okay, so see, without processing you are getting $10 per unit, and after processing you are getting $15 per unit. But remember, there will be some processing cost if you are applying the processing operation. So again, you will have to invest some money on it. Suppose if there is machinery, there are labors, there are power is required. So for example, $3 per unit is the processing cost. Okay, so now you have got $2 more than the without processed product. So now this $2 is that increase in the output value. And suppose after the processing of the product, for example, you get $12 per unit of the product. So without processing, you are getting $10 per unit, and after processing, you are getting $12 per unit. And for example, $3 per unit is the processing cost. So it means that the actual cost of the raw product is the $9 per unit. सो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं करते, बिकॉज प्रोसेसिंग जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है. ओके, सो इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉस्ट एनालिसिस. Suppose if you have an agricultural product and for example you are applying the processing operation, then how the cost of processing will be accounted into the unit product. Okay, so this is the most and important analysis, because हमारा key objective क्या है, to increase the output value to get the maximum benefit. So जिस तरह आप processing operations apply करेंगे product को, तो साथ में आपने उसकी cost analysis भी करनी होगी, या पहले आपने cost analysis करना होगा. इस तरह ना हो कि रॉ प्रोडक्ट का जो आउटपुट वैल्यू है वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट से ज्यादा हो, तो फिर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज फिर वो अनइकोनॉमिकल होगा. ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉस्ट एनालिसिस. सो वी विल डिस्कस दैट which type of cost will be accounted into the agricultural product during the processing operation and how it will be accounted. Okay, so see, the commercial success or failure of a processing enterprise depend naturally upon the difference between the cost of production and income, as we have discussed. Suppose if you are going to install a processing industry, okay, so we can say that the commercial success जो होता है ना, economical success जो होता है, benefits जो होते हैं या advantages या income of the organization या industry जो है, that will be depend on what, the difference between the cost of production and income. If that difference is increasing due to the processing operation, then we will say that the organization or the industry or the processing unit is successful. और अगर ये difference suppose decrease हो रहे हैं, okay, so then the commercial processing enterprise will be in failure, वो फिर loss में होगा. ठीक है, so this difference depend upon the integrated performance of the individual units. As we have already discussed, that suppose if you have a product, so we are applying a multiple of operations into it. ठीक है, सपोज अगर आप एक एग्जांपल ले लें मिल्क की, ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव द रॉ मिल्क, फिर हम उसको बॉयल करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं, फिर उसकी पैकिंग करते हैं, फिर उसकी कन्वेंस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. So there are individual units are involved for heating purposes, for sterilization purposes, for packing purposes, for material handling purposes. Okay, so the difference in that cost of production and income is depend on the performance of the individual unit. So you will have to account the cost of
ऑपरेशन कास्ट ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, हर यूनिट की, हर प्रोसेसिंग प्लांट की जो ऑपरेशन कास्ट है उसको आपने अकाउंट करना है प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को आप प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का जो यूनिट कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज होगा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग यू आर गेटिंग मोर इनकम, सो द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सो द इंजीनियर मस्ट बी एबल टू एस्टिमेट द वेरियस कॉस्ट ऑफ सैंपल प्रोसेसेस। ठीक है, अगर डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं तो हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को आपने एस्टिमेट करना होगा और यूनिट प्रोडक्ट को आपने अप्लाई करना होगा। ठीक है, सपोज अगर आप फ्लूइड्स या लिक्विड, सपोज जूसेस हैं, मिल्क हैं, उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं, सो देन यू विल हैव टू अप्लाई द प्रोसेसिंग कॉस्ट इन टर्म ऑफ पर लीटर, पर लीटर के हिसाब से, पर गैलन के हिसाब से आपने अकाउंट करना होगा। या सपोज इफ यू आर प्रोसेसिंग द ग्रेन्स, so then you have to apply the processing cost per suppose 50 kg। नॉर्मली हमारे पास जो पैकिंग होते हैं वो 50 kgs के होते हैं, 10 kgs के होते हैं, so then you will have to apply the processing cost per 50 kilogram of the product। Similarly, if you have the fruits or vegetables, then you can apply the processing cost per 100, suppose apples है तो 100 एप्पल पे कितना प्रोसेसिंग कास्ट आ रहा है, सो दैट विल बी द प्रोसेसिंग कास्ट पर 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो कास्ट हम अकाउंट करते हैं उसका यूनिट जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए बिकॉज हम बात करते हैं प्रोसेसिंग कास्ट पर यूनिट। ओके, सो फॉर द लिक्विड प्रोडक्ट द पर यूनिट विल बी इन लीटर या पर गैलन। ओके, सिमिलरली पर ग्रेन इट विल बी पर किलोग्राम और 10 किलोग्राम और 50 किलोग्राम। ठीक है, जितने मास की या वेट की आप प्रोडक्ट पैक करते हैं वो आपका 1 यूनिट काउंट होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर फ्रूट्स हैं तो उसको अगर आप सपोज काउंट करते हैं तो प्रोसेसिंग कास्ट पर 12 यूनिट, तो एक दर्जन के हिसाब से उस पर कितना प्रोसेसिंग कास्ट आ रहा है। ठीक है, सो द प्रोसेसिंग इंजीनियर या द एग्रीकल्चरल इंजीनियर मस्ट बी एबल टू एस्टिमेट एंड अकाउंट दैट प्रोसेसिंग कास्ट इनटू द यूनिट प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द machines, see for the processing operation we are using different mechanical machineries, so the machine of the high energy efficiency may not be the most satisfactory machine economically। इस तरह नहीं है कि सपोज अगर एक मशीन है वो मैकेनिकली हाई इफिशिएंट है, वो इकोनॉमिकली इफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, उसका जो ऑपरेशन कास्ट होता है, प्रोसेसिंग कास्ट होता है, वो उतना ज्यादा होता है कि आपका इनकम और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो देन द मोस्ट मैकेनिकली इफिशिएंट मशीन कैन नॉट बी इकोनॉमिकली इफिशिएंट। ओके, similarly sometimes we have automatic machineries which are used for the processing operation that may be expensive but may reduce the labor cost। ओके, अक्सर ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं ना, उसका इनिशियल कास्ट हाई होता है, न्यू कास्ट उसका हाई होता है, बट ऑटोमेटिक मशीन से क्या होते हैं, लेबर कास्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लेबर कास्ट डिक्रीज हो जाता है। सो द यूनिट प्रोडक्शन कास्ट जो है या यूनिट प्रोसेसिंग कास्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि सपोज इफ यू आर बाइंग अ मशीनरी फॉर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन, तो एक तो आपने उसकी मैकेनिकल इफिशिएंसी को देखना होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसकी इकोनॉमिकल इफिशिएंसी को भी देखना होगा। ठीक है, इस तरह नहीं है कि अगर एक मशीन जो है वो हाईली मैकेनिकली इफिशिएंट है लेकिन इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है तो आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना होगा, बिकॉज देन यू कैन नॉट अप्लाई द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सिमिलरली समटाइम द मशीनरी विल बी एक्सपेंसिव बट उसका जो प्रोसेसिंग कास्ट होता है पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट वो कम होता है, देन यू विल हैव टू गो फॉर इट। ठीक है, तो आपने ये कंपैरिजन को देखना होगा। द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आर थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसको आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है. So it is usually advisable to determine the cost analysis on a unit product basis, it is we have discussed. ठीक है कि आप जो कास्ट एनालाइज कर रहे हैं प्रोसेसिंग कास्ट आप अकाउंट कर रहे हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन द यूनिट प्रोडक्ट. जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि लिक्विड प्रोडक्ट के लिए वो पर लीटर के हिसाब से होगा, पर गैलन के हिसाब से होगा, पाउंड के हिसाब से भी हो सकता है पर पाउंड, अगर लिक्विड आप वेट की बेस पे पैक कर रहे हैं. Similarly, per grain, it will be again in pound or in kilograms. Similarly, per fruits and vegetables, it will be in term of numbers. Okay. And the total production cost per unit would be the sum of the units operation cost. Now see, for example, if there are different processing operations are involved into a single product. Suppose first you have, for example, you have wheat. So first you are cleaning it, then for example you are we can say that drying it, then for example you are reducing the size of the wheat, then suppose you are baking it, then you are transporting. So how much is the cleaning cost per 50 kilogram of wheat? Similarly, how much is the drying cost per 50 kilogram of wheat? Similarly, how much is the size reduction or grinding cost for 50 kilogram of wheat? Similarly, how much is the packing cost per 50 kilogram of wheat? How much is the transportation, conveyance or handling cost per 50 kilogram of wheat? तो इसको आपने सम करना होगा. सो दैट विल बी द टोटल प्रोसेसिंग कास्ट पर 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट. ठीक है. Also, it is not always advisable for each unit operation to function in the most economical manner. ये भी important point है. Suppose यहां पे जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, suppose the drawing is not economical, और बाकी जो है फॉर एग्जाम्पल these are highly economical operation. तो इस तरह नहीं है कि एक प्रोसेसिंग की वजह से आप फिर बाकी प्रोसेसिंग ना करें. यू विल हैव टू लुक इनटू दी इसको हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव इकोनॉमिकल को आपने देखना होगा. ठीक है. अगर इसमें आप देखें ना 5 प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इन्वॉल्व है. एक प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है, उसका ऑपरेशन कास्ट ज्यादा है, प्रोसेसिंग कास्ट ज्यादा है, लेकिन बाकी यूनिट्स की प्रोसेसिंग कास्ट कम है. यू विल हैव टू लुक इनटू द ओवरऑल कास्ट. ठीक है कि ओवरऑल पर 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट पे प्रोसेसिंग कास्ट कितना आ रहा है, तो इससे इनकम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. देन यू कैन एडवाइज या यू कैन रिकमेंड द प्रोसेसिंग ऑफ व्हीट फ्रॉम द क्लीनिंग एंड टू द पैकिंग. समझ आ रहा है? क्लियर है ये? यस सर. अच्छा. And it is the accumulated performance, as we have discussed, that you will have to accumulate the processing cost of the different series of operations. Okay, जो at the end of the processing unit ना different units की जो processing cost है उसको आपने accumulate करना होगा, and then you will have to look for it. उसको आपने फिर देखना होगा. ठीक है. अच्छा. Now let's see कि कौन कौन से कास्ट जो है हम अकाउंट करते हैं और किस तरह वो अकाउंट होंगे. ठीक है. सो द टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, जो हम प्रोसेसिंग कास्ट जो होते हैं ना हमारा, वो 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज द फिक्स्ड कास्ट, सेकंड वन इज द ऑपरेशन कास्ट. द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कास्ट इज, सपोज इफ यू हैव द ग्राइंडिंग मशीन, अगर आपके पास एक मिल है ना, ग्राइंडिंग मिल है, तो अगर आपने मशीन को बाई किया हुआ है फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उसके ऊपर आपने टैक्स देना होगा. उसके ऊपर आपने सपोज अगर उसके लिए एक बिल्डिंग किराया पे लिया हुआ है तो आपने किराया पे करना होगा. उसकी इंश्योरेंस आपने करनी होगी.
मीन मतलब ये है कि अगर ग्राइंडर either you are using it or not, you will have to pay for the depreciation, taxes, insurance and housing. So ये उसका फिक्स कास्ट है। मतलब ये कि अगर इक्विपमेंट को आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने ये पे करना होगा। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम उसकी वैल्यू तो डिक्रीज होती है ना, जो डिप्रिसिएशन हमने पढ़ा हुआ है। सो दैट अमाउंट वो तो टाइप ऑफ कास्ट है। और एक ऑपरेटिंग कास्ट है जो डिपेंड होता है ऑन द अमाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। सपोज पावर है, लेबर है, उसकी मेंटेनेंस है, फ्यूल चार्जेस हैं, ये ऑपरेशन कास्ट होता है कि अगर इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं तो ऑपरेशन कास्ट होगा। और फिर वो डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ ऑपरेशन पे। अगर आप इक्विपमेंट को ज्यादा यूज कर रहे हैं ऑपरेशन कास्ट ज्यादा होगा, अगर आप उसको कम यूज कर रहे हैं ऑपरेशन कास्ट कम होगा। और फिक्स कास्ट जो है ये तो फिक्स है, अगर इक्विपमेंट को आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने उसकी बिल्डिंग का कराया, उसकी टैक्स और उसकी डिप्रिसिएशन आपने पे करना होगा। ठीक है, तो दो टाइप्स की कास्ट होते हैं। फिक्स कास्ट आर दोज व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ यूज एज वी हैव डिस्कस्ड। उसमें क्या होते हैं, एक डिप्रिसिएशन होते हैं। सपोज इफ यू हैव परचेस्ड अ न्यू इक्विपमेंट, so with respect to the time the value of the equipment is decreasing. We have also discussed it in detail in the economics, so इसको depreciation कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो इक्विपमेंट है उसको लोन पे परचेज किया हुआ है तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, आइदर इफ यू आर यूजिंग द इक्विपमेंट और नॉट, इंटरेस्ट तो पे करना होगा। हाउसिंग है, ठीक है, उसका जो किराया होता है इक्विपमेंट के लिए, मशीनरी के लिए जो स्पेस है, ठीक है, द टैक्स एंड इंश्योरेंस मीन दीज आर पेड ऑन एनुअल बेसिस। इक्विपमेंट को अगर आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर, ये एक एसेट तो है और एसेट के ऊपर आपने टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स याद रखें। जब भी आप कॉस्ट एनालिसिस करते हैं तो हर एक प्रोसेसिंग यूनिट की जो इक्विपमेंट्स हैं, यू विल हैव टू टेक द डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, हाउसिंग एंड टैक्सेस। ठीक है, कि एनुअली ये कितना खर्चा हो रहा है और इससे जो अमाउंट बन रहे हैं ये आपने डिवाइड करना होगा कि कितना प्रोडक्ट आप प्रोसेस कर रहे हैं। समझ आ रहे हैं? सपोज अगर एक साल में आप जस्ट एक महीने के लिए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और उस 1 मंथ में फॉर एग्जांपल आप 1000 किलोग्राम प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, इक्विपमेंट हम एक महीने के लिए यूज करें ना, एक मंथ में यूज करें, बाकी 11 महीने हम इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे, तो उस एक महीने में आप कितना प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं? 2000 किलोग्राम। अच्छा, अब उस इक्विपमेंट के पूरी साल का ये कितना खर्चा आ रहा है, इसको आपने इन 2000 किलोग्राम पे डिवाइड करना होगा। तो आपके पास आ जाएगा कि पर किलोग्राम पे फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट कितना आ रहा है। और जब उस 1 मंथ में आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो उस 1 मंथ का फिर आपने फ्यूल चार्जेस, पावर चार्जेस, लेबर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, लुब्रिकेशन चार्जेस, वो फिर ऑपरेशन कॉस्ट होगा, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ यूज। तो दैट विल बी द ऑपरेशन कॉस्ट पर किलोग्राम। तो इसको जब आप ऐड कर लेंगे सो यू विल गेट द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर किलोग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी? Yes, sir. अच्छा, so these are the 4 costs which are included in the fixed cost. Now operating costs जो है that are directly related with the amount of use. Suppose अगर equipment आप यूज कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, अगर आप उसको कम यूज करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा। जाहिर बात है उसमें फ्यूल, पावर एंड यूटिलिटीज हैं, लेबर कॉस्ट है, मेंटेनेंस आ जाता है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ द इक्विपमेंट उसकी आपने रेगुलर मेंटेनेंस करना होता है। अगर इक्विपमेंट को आप यूज नहीं कर रहे तो फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी ना। ठीक है, सो अ मशीन और यूनिट ऑपरेशन इंक्लूड द डिवाइस दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट एंड द पावर यूनिट दैट ड्राइव द डिवाइस। ठीक है, वन वी हैव द प्राइमरी डिवाइस व्हिच इज एक्चुअली processing the product,
One, we have the secondary device which is providing power into the product. ठीक है, सपोज अगर आपके पास ग्राइंडर है, एक मिल है, हेमर मिल है, तो उसके साथ मोटर भी अटैच्ड होता है ना, विच इज द सेकेंडरी इक्विपमेंट इन प्रोवाइडिंग द पावर, और ये मेन इक्विपमेंट है. तो फॉर द कास्ट एनालिसिस आपने ये पूरा सिस्टम एनालाइज करना होगा. मोटर का कास्ट भी आपने अप्लाई करना होगा. मोटर का जो डिप्रिशिएशन कास्ट है, इंटरेस्ट है, हाउसिंग है, बिकॉज मोटर तो आप किसी दूसरी पर्पस के लिए यूज नहीं करे, दैट इज जस्ट यूज फॉर द गिवन प्रोसेसिंग ऑपरेशन. ओके, लेट्स डिस्कस कि इन कास्ट को आप किस तरह अकाउंट करेंगे. रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर of the agricultural processing operation, because whenever you are applying the processing operation, first you will have to do the cost analysis. So which type of cost will be accounted and how it will be accounted. ठीक है, so जो first depreciation है, as we know that depreciation is the decrease in the value of an equipment or a machinery during a period of time or with respect to the time. ठीक है, with respect to the time machine की जो टाइम वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, that is called depreciation. So the decrease is considered from the standpoint of amount to be set aside each year in order to recover the cost of the unit. उसका मतलब ये होता है, suppose if you have purchased a processing machinery at a cost of $1,000 और उसकी जो सपोज लाइफ टाइम है, सपोज दैट इज 10 ईयर, सो 10 साल बाद ये इक्विपमेंट फिर आप यूज नहीं कर सकते ना. 10 साल बाद आपने दूसरा इक्विपमेंट परचेस करना होगा. ठीक है, तो हर साल कितना अमाउंट आपने रखना होगा कि 10 साल बाद आप न्यू इक्विपमेंट जो है वो परचेस कर सकें. ठीक है, या 10 साल में आपने जितना प्रोडक्ट प्रोसेस किया हुआ है, तो उस प्रोडक्ट पे आपने ये $1,000 अप्लाई करना होगा, बिकॉज 10 साल में आपने जो प्रोडक्ट प्रोसेस किया उसके बाद तो आप इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते. सो ये जो आपने मशीनरी परचेस किया था, तो इन 10 साल में आपने जितना प्रोडक्ट प्रोसेस किया हुआ है, इसका कास्ट आपने उस पे अप्लाई करना होगा. सो जस्ट डिवाइड द टोटल कास्ट ऑफ द इक्विपमेंट on the product which you are going to process or which you have processed in the lifetime of the equipment. ठीक है, again we have different terms which we have already discussed in the engineering economics, like we have the depreciated value, the actual value, okay, the resale value and the taxable value. So see, for example, if you have purchased an equipment at $1,000 and the lifetime of the equipment is 10 years, so by straight line method हर साल उसमें $100 depreciation होगा. ठीक है, now after 3 years what will be the depreciated value? जी क्विकली बताएं, 3 साल बाद उसकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी, बताएं ना जल्दी. जी जुल्करनैन, आर यू देयर? जुल्करनैन, मुनीब, आप बताएं. अगर रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर मैं आउट कर दूंगा क्लास से. ठीक है जी. हारिस, डिप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होगा? जी जी मुराद. सर इनिशियल वैल्यू कितनी है सर? $1,000 है ना, मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को. आप लोग, और डिप्रिसिएशन कितना होता है सर? 10 ईयर उसका लाइफ टाइम है, तो $100 पर ईयर डिप्रिशिएशन होगा. 3 साल बाद उसकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होगी? ठीक है सर, मैं क्या जी, तो कितना होगा डिप्रिशिएटेड वैल्यू?
700 होगा सर। $700. Okay, so the depreciated value is the current value of the product. Suppose जिस ईयर बाद आप उसकी एनालिसिस करें तो उस साल में उसकी वैल्यू कितनी है, that will be the depreciated value. Okay, the actual value is based upon the value which the unit adds to the product. Now see, after 3 years, the depreciated value of the equipment is $700. Now in these 3 years, how much you have accounted into the processing product. So the value which the equipment is added into the processing product, that is the actual value. We have a term which is the resale value. That is the best price. सपोज 3 साल बाद आप उस इक्विपमेंट को ओपन मार्केट में सेल कर रहे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज द रीसेल वैल्यू. वन इज द टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं या आप टैक्स पे करते हैं, दैट इज द टैक्सेबल वैल्यू. ठीक है, अगेन ये इकोनॉमिकल टर्म है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इट. तो द टोटल डिप्रिशिएटेड कास्ट जो होता है, दैट इज द न्यू कास्ट माइनस द सल्वेग वैल्यू. ठीक है, मीन सल्वेग वैल्यू इज द कास्ट ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ. सपोज अगर 10 साल बाद आप उस इक्विपमेंट को परचेस कर रहे स्क्रैप में, ठीक है, तो उसकी जो कास्ट होगी दैट विल बी द सल्वेग वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल 10 साल बाद आप उस इक्विपमेंट को $100 पे सेल कर ले स्क्रैप में, और इनिशियली आपने उसको परचेस किया था $1000 पे. ठीक है, सो उसका जो टोटल that will be $900. सो अगर लाइफ टाइम उसकी 10 इयर्स है तो एक साल में जो प्रोडक्ट और प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर आपने $90 अकाउंट करना होगा. क्लियर हो गया कंसेप्ट जी? यस सर. अच्छा, now we have different methods which we have also discussed in the economics subject. First one is the straight line method. So this straight line method is the simplest method and most widely used procedure for determining the annual depreciation charges. Okay, and see, in this method the depreciation charges per year is equal to the new cost minus the salvage value divided by the total expected life. See, डिप्रिशिएशन कॉस्ट जो होते हैं ये एनुअल बेस पे होते हैं, ठीक है, ईयर बेस पे होते हैं, और फिर उसको हम अकाउंट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि उस साल में आपने कितना प्रोडक्ट प्रोसेस किया हुआ है ना. सो दैट डिप्रिशिएटेड कॉस्ट पर ईयर विल बी अकाउंटेड इनटू द प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोसेस्ड इन द गिवन ईयर. सो द डिप्रिशिएशन चार्जेस पर ईयर इज इक्वल टू द न्यू कॉस्ट माइनस salvage value divided by the total expected life. As we have discussed, for example, if you have purchased salvage value है, suppose वो $100 है और लाइफ टाइम उसका 10 ईयर है, सो पर ईयर जो डिप्रिशिएशन चार्जेस होंगे that will be $90. salvage value जो है that is the resale value at the end of the useful life. जब इक्विपमेंट जो है उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए तो उस टाइम पे जो रीसेल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द सल्वेज वैल्यू. दिस इज द डिप्रिशिएशन पर ईयर. वन इज द टोटल डिप्रिशिएशन. सो ऑब्वियसली द टोटल डिप्रिशिएशन विल बी द न्यू कॉस्ट माइनस द सल्वेज वैल्यू. ठीक है. नाउ सम बिजनेसेस आर accumulating some specific amount of money each year, okay, and investing it at some interest, so that at the end of the equipment they may purchase the new equipment. वो क्या करते हैं कि सपोज अगर आज आपने एक इक्विपमेंट परचेस किया हुआ है $X पे, उसकी लाइफ टाइम सपोज n इयर्स है, ठीक है, तो हर साल आप कितना अमाउंट साइड पे रखेंगे कि इतने साल बाद फिर आप न्यू इक्विपमेंट परचेस कर सके. और हर साल आप जो अमाउंट रख रहे हैं ना
उसकी ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो जो तो द अमाउंट विच यू आर accumulating each year, that is called NVT. Okay, that is the amount which will be set aside, yeah, which will be set aside and will be invested at compound interest rate I per L year, so that at the end of the expected life of the machinery you may have S amount, which is the new cost of the equipment. समझ आ रहा है? सपोज अगर एक इक्विपमेंट है ना, उसकी न्यू कास्ट कितनी है, इतनी है, लाइफ टाइम कितना है, एल, ठीक है। तो हर साल आपने कितना अमाउंट सपोज बैंक में डिपॉजिट करना होगा, जिसकी ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट भी आएगा, सो दैट इतने साल बाद आप न्यू इक्विपमेंट परचेस कर सके। सो दैट इज दिस वन, एस आई 1 plus divided by 1 plus I to the power L minus 1. This is called the NVT. जो सैंपल मेथड था ना, उसमें हर साल हम कांस्टेंट अमाउंट रखते थे, उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं आता था ना। हर साल यू हैव टू डिपॉजिट दी $90, ठीक है, और 10 साल बाद फिर आपके पास जो है $900 होंगे, तो उससे आपकी इक्विपमेंट का वैल्यू जो है वो रिकवर हो जाएगा। ये मेथड जो है, इसमें हर साल आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, जिसकी ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा, सो दैट एट द एंड ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट यू मे परचेस द न्यू इक्विपमेंट, ठीक है। सो दैट इज द एनवीटी। अगर एक इक्विपमेंट है, उसका न्यू कॉस्ट या डिप्रिशिएटेड वैल्यू, ये एस जो है, दैट इज द न्यू कॉस्ट माइनस सल्वेग वैल्यू ना, इतना अमाउंट आपने डिपॉजिट करना होगा, बिकॉज सल्वेग वैल्यू तो आपको रिटर्न हो जाएगा। सो न्यू कॉस्ट माइनस सल्वेग वैल्यू, दैट इज एस। तो हर साल आपने इतना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ आई, सो दैट आफ्टर एल ईयर यू मे हैव दिस मच अमाउंट टू परचेस द न्यू इक्विपमेंट। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. So A is the amount which will be placed aside annually. So at the end of this L years, you will have S amount. ठीक है? So that is the next जो मेथड है वो फिक्स परसेंटेज मेथड है। See, sometime this method is used when it is desirable or advisable to depreciate the unit at a faster rate when new than when it become older. अक्सर जो इक्विपमेंट होता है या मशीनरीज जो होते हैं ना, सो उसकी जो इनिशियल टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, उसमें डिप्रिशिएशन क्विक होता है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम रेट ऑफ डिप्रिशिएशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, सी, आज आप एक मोबाइल फोन ले लें ना 10,000 पे, न्यू मोबाइल फोन आप ले लें, कल आप इसको जब परचेस सेल करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये हार्डली आपको 7,000 देगा। आफ्टर 1 ईयर अगर आप इसको परचेस कर रहे हैं, समझ आ रहा है? सपोज अगर आज आपने एक मोबाइल फोन परचेस किया हुआ है, तो 1 साल बाद अगर उसको सपोज आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 7,000 मिल रहे हैं, अगर 2 साल बाद आप उसको सेल कर रहे हैं, आपको 6,000 मिल रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएशन कितना है, 3,000। नेक्स्ट ईयर का डिप्रिशिएशन कितना है, 1,000। फॉर एग्जांपल 3 साल बाद अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, सपोज आपको 5,500 मिल रहा है, तो थर्ड ईयर का डिप्रिशिएशन कितना है, 500 है। So the depreciation rate is decreasing faster when the equipment is new as compared to when it become older. तो इसके लिए फिर हम फिक्स परसेंटेज मेथड यूज करते हैं कि इनिशियली या फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिशिएशन रेट ज्यादा होगा, सेकंड ईयर के लिए कम होगा, थर्ड रेट के लिए फिर इस तरह प्रोग्रेसिवली वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है? सो ईच ईयर द एनुअल डिप्रिशिएशन will be based on the
depreciated value of the product. For example, अगर इक्विपमेंट है उसका कॉस्ट कितना है, $1,000 है, एंड फॉर एग्जाम्पल द डिप्रिशिएशन इज 10%, तो फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिशिएशन कितना होगा, $100 होगा. तो नेक्स्ट ईयर की स्टार्ट में इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होगी, $900 होगी. तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो डिप्रिशिएशन होगा दैट विल बी द 10% ऑफ दिस वन, वो $90 होगा. तो थर्ड ईयर की स्टार्ट में इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होगी, $10 होगी. तो थर्ड साल के लिए जो डिप्रिशिएशन रेट होगा दैट विल बी 10% ऑफ दिस वन, वो $81 होगा. सो सी, for the first year the depreciation rate is $100, for second that is $90, for third that is $81. So the depreciation is we can say that faster for the period when the equipment is new as compared to the when it become older. इसको fixed percentage method कहते हैं of the present value या fixed percentage of the depreciated value. ठीक है. तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड जो है दैट इज बेस्ड ऑन द सल्वेग वैल्यू. एक इक्विपमेंट की आप सल्वेग वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं, सपोज R इज द एनुअल डिप्रिशिएशन रेट, L इज द एक्सपेक्टेड लाइफ एंड द न्यू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वाज दिस वन, तो उसकी सल्वेग वैल्यू ये होगी. नाउ इन सालों में, L ईयर्स में, या प्रोडक्ट ने कितना वैल्यू एड किया हुआ है प्रोडक्ट को. ठीक है, जिस इक्विपमेंट से आपने प्रोसेसिंग की है ना, तो हाउ मच वैल्यू इज एडेड इनटू द प्रोडक्ट, या द वैल्यू एट द एंड आफ्टर n years. सी, मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल पे समझा रहा हूं. फॉर एग्जांपल, एक इक्विपमेंट है, उसकी न्यू कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जांपल $1,000 है, लाइफ टाइम उसका कितना है, 10 ईयर है, डिप्रिशिएशन रेट कितना है, सपोज 10% है. सो दिस इज R, ये L है और ये न्यू कॉस्ट है. इसको आप जब यहां पे पुट करेंगे, सो यू विल गेट द सल्वेग वैल्यू दैट आफ्टर 10 ईयर व्हाट विल बी द रीसेल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट. नाउ सपोज यू आर फाइंडिंग आउट दैट फॉर एग्जांपल after 4 years, what is the value of the equipment? After 4 years, what is the value of the equipment? तो ये n हो जाएगा. R जो है ये 10% है और न्यू कास्ट तो गिवन है, so you will find out that this is the value of the equipment after 4 years. Now, the difference between the new cost and this value, that will be the depreciated amount. ठीक है, कि इन 4 साल में इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी डिप्रिशिएट हुई है. समझ आ गया. जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि एट द स्टार्ट हमारे पास 2 टाइप्स के कास्ट है, एक फिक्स्ड कास्ट है, एक वेरिएबल कास्ट है. तो फिक्स्ड कास्ट में फर्स्ट डिप्रिशिएशन होगा. डिप्रिशिएशन अमाउंट आपने इस तरह कंसिडर करना होगा कि एक साल में कितना वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है, उस साल में कितना प्रोडक्ट आपने प्रोसेस किया हुआ है. सो द डिप्रिशिएटेड अमाउंट डिवाइड बाय द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, सो दैट विल बी द डिप्रिशिएटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. तो डिप्रिशिएशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, कि एक इक्विपमेंट जो है वो कितनी ईयर्स तक काम कर सकता है विदाउट द कंप्लीट फेलेवर. सो उसको आप नंबर ऑफ डेज में ले सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स में ले सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स में ले सकते हैं. सम टाइम जो उसको हम क्या कह सकते हैं, जो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट होते हैं उसकी सम ऑपरेशन टाइम होता है कि आफ्टर 1000 आवर ये इक्विपमेंट आपने चेंज करना होगा. सो दैट 1000 आवर इज द एक्सपेक्टेड लाइफ, या कितने साल के लिए, कितनी डेज के लिए आप इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं विदाउट द कंप्लीट फेलेवर. एक तो फेलेवर आ सकता है ना, डैमेज आ सकता है विच यू कैन मेंटेन, बट आफ्टर द कंप्लीट फेलेवर द लाइफ टाइम जो है दैट इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड लाइफ.
So the depreciation must be based on the estimated or assumed useful length of service. ठीक है? So that study, that expected life can be obtained through different studies, through experience from the manufacturer. उसकी जो pamphlets होते हैं, ठीक है? The expected life of each will be determined in a systematic studies, because उसका जो amount होता है फिर आपने उसको account करना होगा. Okay, and also you will have to take the assurance that the equipment will be not affected by the unforeseen hazards. मीन ये तो unforeseen आ जाते हैं. सपोज अगर earthquake आ जाए, कोई flood आ जाए और आपका equipment जो है वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए अपने equipment की insurance करना होगा. So you will have to pay also the insurance charges, and which will be accounted for the processed product. ठीक है? And there are different factors which can affect the actual life of the equipment, या जो equipment की life को shorter कर सकते हैं. एक obsolescence है. Suppose अगर आज आपने एक equipment लिया हुआ है, उसकी लाइफ टाइम फॉर एग्जांपल 10 इयर्स है, लेकिन 2 साल बाद एक न्यू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आ जाए, एंड इफ यू वांट टू रिप्लेस योर ओल्ड इक्विपमेंट, तो उसकी लाइफ टाइम रिड्यूस हो गई ना. 2 साल बाद आपने उसको चेंज कर दी. ठीक है? सिमिलरली उसकी डिजाइन में अगर इंप्रूवमेंट आ जाए, मतलब ये है कि एक इक्विपमेंट की लाइफ टाइम जो शॉर्टर होते हैं, उसमें एक फैक्टर ये है. सपोज आपने एक इक्विपमेंट परचेज किया हुआ है प्रोसेसिंग के लिए, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 20 इयर्स है, लेकिन 5 साल बाद एक न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए या उसमें अगर इंप्रूवमेंट आ जाए, एंड यू वांट टू रिप्लेस योर ओल्ड इक्विपमेंट, तो उसकी लाइफ टाइम डिक्रीज हो गई ना. सिमिलरली जो प्रोडक्ट आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, लाइफ टाइम मशीनरी की कितनी थी? 20 इयर्स. अब 5 साल बाद आप जो प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे, सपोज अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाए और आप प्रोडक्ट को सपोज डिफरेंट मेथड से पैक कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड से प्रोसेस कर रहे हैं, तो फिर ओल्ड इक्विपमेंट आप यूज नहीं कर सकते ना, तो उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा. सिमिलरली प्रोडक्शन फैक्टर में अगर चेंजेस आ जाए, फॉर एग्जांपल उसकी अगर ऑपरेटर अवेलेबल ना हो, उसके लिए पावर अवेलेबल ना हो, उसके लिए प्रोडक्ट को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, देन यू विल हैव टू चेंज द इक्विपमेंट, तो उसकी लाइफ टाइम डिक्रीज हो जाएगी. समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? जी. यस सर. द अमाउंट ऑफ यूज में इफेक्ट द एक्सपेक्टेड लाइफ, ये भी है. सपोज अगर एक इक्विपमेंट है, उसका लाइफ टाइम 10 इयर्स है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उस इक्विपमेंट को आपने 8 आवर पर डे यूज करना होगा, तभी उसकी लाइफ 10 इयर्स होगी. नाउ इफ यू आर ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल 15 आवर पर डे, तो उसकी लाइफ टाइम रिड्यूस्ड हो जाएगी. That is also one of the point which can affect the expected lifetime of the equipment. ठीक है? So we have some different lifetime for different agricultural processing equipments, that normally for any types of the agricultural machinery equipment, averagely we are taking 10 years of expected lifetime. Farm buildings जो होते हैं, उसकी 25 years life होती है. फूड प्रोडक्ट इक्विपमेंट है, ठीक है, जिसके साथ डायरेक्टली प्रोडक्ट इन कांटेक्ट आ जाता है ना, या ग्रेन मिलिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, उनकी ये लाइफ टाइम्स है. ठीक है? पंप और फैंस जो होते हैं, आप इस मशीनरीज है, सपोज प्रिंटर है, कुछ स्टेट इक्विपमेंट है, उसकी नॉर्मली जो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ होता है वो 12 years का होता है. And see, as we have discussed, the expected life is most important because based on which we are calculating the depreciated cost, और उसको फिर हम अकाउंट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर. ठीक है? So that was the depreciation, the first parameter of the fixed cost. Second जो parameter है fixed cost का, that is interest. Again remember, these costs will be accounted either if you are using the equipment or not.
ये अकाउंट होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर डिटरमाइंड ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है कि एक साल में एक इक्विपमेंट का फिक्स्ड कॉस्ट खर्चा कितना है। सो सेकंड पैरामीटर जो है दैट इज द इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, if you have take a loan from the bank, if you have borrowed money to buy the processing machine, then the person जिसने आपको लोन दिया हुआ है ना, he or she will charge the interest rate। ठीक है। and also suppose if you have purchased the equipment on your own cost, अगर आपने अपनी कास्ट पे इक्विपमेंट को परचेस किया हुआ है तो उस अमाउंट का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप उस इक्विपमेंट को ना खरीदे और उससे आप कोई बिजनेस चलाएं तो उस बिजनेस से आपको फायदा हो सकता है ना, उससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो अमाउंट तो आपने इक्विपमेंट पे इक्विपमेंट आपने उससे खरीदा है। समझ आ रहा है ना? दो ऑप्शन है ना, आपने जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट खरीदा हुआ है, आइदर यू विल हैव परचेस इट थ्रू लोन मनी और यू विल हैव परचेस्ड इट थ्रू योर ओन मनी। सो अगर आपने लोन मनी से इक्विपमेंट परचेस किया हुआ है तो उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना होगा, और अगर आपने इस इक्विपमेंट को अपनी मनी से परचेस किया हुआ है तो अगर परचेसिंग के बजाय आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते तो उससे आपको प्रॉफिट मिलता था। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो वो प्रॉफिट आपका स्टॉप हो गया ना, सो दैट विल बी आल्सो अकाउंटेड एज अ इंटरेस्ट इनटू द इक्विपमेंट। ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज चार्ज अगेंस्ट द पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज द इनिशियल और गारंटीड रिटर्न टू द ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। सपोज अगर आपने इन्वेस्टर से पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, या आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी ऊपर आइदर यू विल हैव टू अकाउंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ दी, अगर मनी आपकी अपनी है, और यू विल हैव टू अकाउंट द इंटरेस्ट इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम समवन। ठीक है। सो इंटरेस्ट अकाउंट करना होगा। एंड रिमेंबर, इंटरेस्ट जो हम काउंट करते हैं वो सम फिक्स्ड अमाउंट काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव परचेस्ड एन इक्विपमेंट और उसकी लाइफ टाइम $1000 है, ठीक है, सॉरी, उसकी न्यू कास्ट $1000 है, लाइफ टाइम उसका 10 ईयर है, और 4% उस पे इंटरेस्ट है। तो फिर इंटरेस्ट को आप किस तरह काउंट करते हैं? उसकी दो मेथड है। द इंटरेस्ट अकाउंटेड ऑन द डिप्रिशिएटेड वैल्यू, बिकॉज जब इक्विपमेंट न्यू हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा होगा। विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो उस पे इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। ठीक है। दैट इज द इंटरेस्ट ऑन डिप्रिशिएटेड वैल्यू। सो सी, अगर फर्स्ट इनिशियल कास्ट कितना था? $1000, 10 ईयर उसकी लाइफ टाइम है। सपोज 4% इज द इंटरेस्ट रेट, तो फर्स्ट ईयर के लिए अब देखें ना, डिप्रिशिएशन कितना होगा? $100 पर ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए उसकी वैल्यू तो $1000 है ना, तो $1000 का 4% जो है वो $40 बन रहा है। तो फर्स्ट ईयर पे 40% आपका इंटरेस्ट, $40 इंटरेस्ट आएगा। अब सेकंड ईयर में इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होगी? $900 होगी ना। सेकंड ईयर में इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होगी? $900। तो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना पे करना होगा? $36। सिमिलरली थर्ड ईयर में इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होगी? $800 होगी, बिकॉज हर साल $100 उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। तो थर्ड ईयर में इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होगी? $100। तो थर्ड ईयर में उसका इंटरेस्ट कितना होगा? 32% होगा। सो सी, हर साल आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज ऑन द डिप्रिशिएटेड वैल्यू। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड जो है, हर साल
आपने फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट पे करना होगा। यहां पे हर साल जो है इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है ना। सेकंड मेथड जो है दैट इज इंटरेस्ट ऑन हाफ ऑफ द कास्ट न्यू, मीन हाफ ऑफ द न्यू कास्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट परसेंटेज। अब देखिए ना, इक्विपमेंट का न्यू कास्ट कितना है, $1000 है, इसका हाफ कितना होगा, 500 होगा। तो 500 का 4% $20। नाउ हर साल आपने $20 उस पे इंटरेस्ट देना होगा। नाउ देट विल बी अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। इज इट क्लियर हारिस? क्लियर हो गया अब्दुल हसीब? जी क्लियर है सर। अच्छा ठीक है। तो इंटरेस्ट इस तरह काउंट करते हैं। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन टोटल कास्ट न्यू, ठीक है। सपोज अगर आप न्यू कास्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट जो है अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है दैट इज दी, जनरली हम जो अकाउंट करेंगे ना, आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होगा कि सपोज 3% आपने इंटरेस्ट देना है, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय न्यू कास्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो हर साल आपने इतना अमाउंट इंटरेस्ट का अकाउंट करना होगा, ठीक है। अच्छा, हाउसिंग है, अगेन दैट इज द पैरामीटर ऑफ द फिक्स्ड कास्ट। अगर इक्विपमेंट को आप यूज कर रहे या नहीं कर रहे, आपने उसका अगर किराया पे आपने बिल्डिंग लिया हुआ है, उसमें इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है, तो उसका हाउसिंग कास्ट आपने पे करना होगा, ठीक है। तो सम टाइम अगर प्लेस अपना है, उसके ऊपर आप किराया नहीं दे रहे, तो फिर हाउसिंग चार्जेस नहीं होते, ठीक है। इट इज यूजुअली customary to handle housing is a separate and distinct item, या sometime ये housing जो है ये इंटरेस्ट के साथ अकाउंट करते हैं, या sometime ये आप इंडिविजुअली करते हैं, ठीक है। एंड हाउसिंग जो है इसका डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द इक्विपमेंट, मीन इफ यू हैव टू प्रॉपरली प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट, यू विल हैव टू प्रॉपरली मेंटेन द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, तो फिर आपने उसके लिए प्रॉपर जगह प्रोवाइड करनी होगी ना, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो अगर आप जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस जगह का आपने सपोज रेंट देना है, सो दैट विल बी अकाउंटेड इनटू द in the cost. So that cost will be sometime accounted in term of square feet, ठीक है। अगर इक्विपमेंट है उसने कितना जगह ऑक्युपाई किया हुआ है, और पर स्क्वायर फीट के पर ईयर के कितने चार्जेस हैं, सो दैट विल बी द हाउसिंग चार्जेस, ठीक है। और सपोज अगर एक इक्विपमेंट है, उसके साथ सपोज अगर स्टोरेज रूम है, ऑफिस है, ऑपरेटर रूम है, ठीक है, लेबर की रूम है, सिक्योरिटी गार्ड की रूम्स हैं, तो पूरा जगह जो है उसका जो रेंट होगा दैट विल बी अकाउंटेड इनटू द प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एंड that cost will be calculated on yearly basis based on the floor area, या the volume space occupied by the equipment, and that value will be added into the product, okay? That will be a type of housing processing cost of the equipment, ठीक है। Similarly जो other है, that is the taxes and insurance. Suppose for the unexpected situation हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं ना। तो इंश्योरेंस के लिए हर साल आपने सम अमाउंट पे करना होगा, या अगर आपके पास एक इक्विपमेंट है, सो दैट इज द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना होगा, ठीक है। सो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अगेन दीज मस्ट बी पेड एंड मस्ट बी अकाउंटेड इनटू द प्रोडक्ट इज अ प्रोसेसिंग कास्ट। सो इंश्योरेंस शुड बी पेड इन द फॉर्म मशीनरी टू अलाउ फॉर रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ डिजास्टर, एज वी हैव डिस्कस्ड। सपोज अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, डिजास्टर आ जाए, सपोज फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, और आपका इक्विपमेंट खराब हो जाए,
तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको न्यू इक्विपमेंट देगा ना, लेकिन आपने उसके लिए इंश्योरेंस कॉस्ट पे करना होगा। सो समटाइम इंश्योरेंस जो हम कैलकुलेट करते दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट। जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है उसकी इंश्योरेंस चार्जेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द अनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ठीक है। समटाइम जो टैक्सेस हैं, इंश्योरेंसेस हैं एंड हाउसिंग हैं, all of these are accounted as a 1% of the new cost। ठीक है, मीन 1% ऑफ द न्यू कास्ट हम अक्सर अकाउंट कर। सपोज अगर इंडिविजुअली आपके पास नहीं है ना कि हाउसिंग का खर्चा कितना आएगा, टैक्स इंश्योरेंस कितना है, तो लंप सम आप ले सकते हैं उसको 1% ऑफ द हाफ ऑफ द न्यू कास्ट, या 1% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, 1.5% ऑफ द हाफ ऑफ द न्यू कास्ट। इक्विपमेंट का न्यू कास्ट कितना है, उसकी हाफ का 1.5% ले लें या 1% ले लें। सो दैट विल बी द एनुअल टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड हाउसिंग चार्जेस। ये एज अ रफ वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस की ना, दो टाइप्स के कास्ट है। अगेन फिक्स कास्ट है, वेरिएबल कास्ट है। फिक्स में क्या है, डिप्रिशिएशन है, इंटरेस्ट है, हाउसिंग है, इंश्योरेंस है एंड टैक्सेस है। तो डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट आपने फाइंड करना होगा बेस्ड ऑन द न्यू कास्ट ऑफ द इक्विपमेंट, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। हाउस, इंश्योरेंस और टैक्सेस अगर आपके पास डेटा गिवन है तो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लें। अगर डेटा गिवन नहीं है देन यू कैन टेक इट 1 to 1.5% ऑफ द हाफ ऑफ द न्यू कास्ट। क्लियर हो गया जी? यस सर। अच्छा, अब देखिए हमारे पास वेरिएबल कास्ट है ना। सो वेरिएबल कास्ट आर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट। अगर आप इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं वेरिएबल कास्ट होगा, अगर आप यूज नहीं कर रहे वेरिएबल कास्ट नहीं होगा। तो वेरिएबल कास्ट में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज पावर, फ्यूल एंड यूटिलिटीज। ठीक है, मीन सपोज इफ यू आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ वीट, तो उसके लिए मोटर आप लगाएंगे तो मोटर से इलेक्ट्रिक पावर आपने यूटिलाइज करना होगा। या अगर मोटर है, जनरेटर है सपोज, तो उस पर फ्यूल का चार्जेस होगा। यूटिलिटीज जो है उसमें अक्सर बास प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में सपोज अगर आपको वाटर चाहिए या आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए, स्टीम चाहिए होते हैं, गैस चाहिए होते हैं, ऑयल, गैसोलीन चाहिए होते हैं। सो इसकी जो कास्ट होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल कास्ट एंड अगेन दैट विल बी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ यूज। जितना आप इक्विपमेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं उतना पावर, फ्यूल एंड यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो इसको आप ले सकते हैं ना। फिर सपोज अगर पावर है तो पावर को आप किलोवाट हावर हम लेते हैं ना, कि कितनी यूनिट आपने खर्च किए हुए हैं, 1 यूनिट का कास्ट कितना है, तो कितने यूनिट आपने खर्च किए उसको कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास टोटल पावर कास्ट आ जाएगा। अगर आप फ्यूल यूज कर रहे हैं तो कितने लीटर ऑफ ऑयल यूज किया हुआ है, पर लीटर का कास्ट कितना है, सो यू विल गेट द टोटल कास्ट ऑफ द फ्यूल। ठीक है। चार्जेस आर मोस्ट कन्वीनियंटली दैट विल बी बेस्ड ऑन आवरली बेसिस और डेली बेसिस, कि पर डे कितनी फ्यूल यूज होते हैं, पर डे कितना पावर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको अकाउंट करना होगा। नेक्स्ट जो वेरिएबल कास्ट है दैट इज द लेबर कास्ट। इक्विपमेंट ऑपरेट हो रहे हैं ना, इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं तो उसको एक ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर होता है, उसके साथ लेबर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। तो उनकी जो चार्जेस हैं अगेन दैट विल बी आइदर ऑन डेली बेसिस और हावरली बेसिस। एंड सपोज इफ अ सुपरवाइजर, अगर एक सुपरवाइजर है ना, वो नंबर ऑफ इक्विपमेंट सुपरवाइज कर रहे हैं, तो एक इक्विपमेंट पे वो जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम के हिसाब से वो चार्जेस फिर अकाउंट होंगे। ठीक है। एंड लेबर चार्जेस दैट इज द ड्यूटी टाइम।
अक्सर सपोज अगर सिक्योरिटी गार्ड है, सो अगेन अगर इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी गार्ड तो होगा, उसकी कास्ट फिर आपने भी काउंट करना है इस केस में, ठीक है। मेंटेनेंस है, अगेन दैट इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ यूज ऑफ द इक्विपमेंट। अगर आप इक्विपमेंट को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपने उसकी मेंटेनेंस करनी होगी। अगर इक्विपमेंट को आप यूज नहीं करें तो फिर उसमें कोई डैमेज नहीं आ सकता, फिर उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। लुब्रिकेशंस करते हैं, नॉर्मल रिप्लेसमेंट करते हैं ना कुछ पार्ट्स जो होते हैं। सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं गाड़ी का, ठीक है, व्हीकल है ना, तो सम टाइम बाद हम क्या करते हैं गाड़ी में, मोबाइल ऑयल चेंज करते हैं ना, इंजन की मोबाइल ऑयल, वो डिपेंड होते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ यूज ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द इंजन, कि कितना किलोमीटर आपने उसको ऑपरेट किया हुआ है, तो फिर उतने किलोमीटर बाद आपने लुब्रिकेशन चेंज करनी होगी। सिमिलरली अगर व्हीकल में जो ब्रेक्स होते हैं, सम टाइम बाद आपने ब्रेक पैड्स जो है वो चेंज करने होते हैं ना ड्यू टू द वियरिंग, ठीक है, तो ये मेंटेनेंस में आ जाते हैं। या अगर कुछ माइनर रिपेयर्स आपने करने हैं, ठीक है, सो अगेन उसके लिए स्किल्ड लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर कोई पार्ट आप चेंज कर रहे हैं, लुब्रिकेशन कर रहे हैं, सो मेंटेनेंस कास्ट होगा। पेंटिंग और क्लीनिंग आप करें ना हर साल बाद, सपोज अगर आप इक्विपमेंट की पेंटिंग करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। सो रिपेयर लेबर एंड पेंटिंग एंड क्लीनिंग कैन यूजुअली बी डिटरमाइन ऑन ईयरली बेसिस। अगेन सम टाइम इसको हम ईयरली बेसिस पे फाइंड करते हैं कि एक साल में अगर इक्विपमेंट आपने यूज किया हुआ है तो फिर एक साल बाद आप उसकी क्लीनिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसको लुब्रिकेशन देते हैं, कुछ पार्ट्स उसके चेंज करते हैं। सो दीज चार्जेस आर 1 to 5% of the new cost. Generally हम लेते हैं ना 1% of the new cost will be considered as a maintenance cost of the given equipment. अगर सपोज एक इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है ना, जाहिर बात है उसके मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव होगा। अगर एक इक्विपमेंट जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है तो उसके ऊपर फिर मेंटेनेंस का कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस की, दो टाइप्स के कॉस्ट हमने डिस्कस की, फिक्स कॉस्ट हो गए और वेरिएबल कॉस्ट हो गए। अगेन फिक्स कॉस्ट में डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड हाउसिंग। रिमेंबर these costs are determined on annual basis. वेरिएबल कास्ट में हमारे पास पावर है, फ्यूल्स है, यूटिलिटीज है, लेबर है एंड मेंटेनेंस है। सो दीज आर डिटरमाइंड ऑन ईयरली बेसिस, हावरली बेसिस और डेली बेसिस और यूनिट बेसिस, कि कितना प्रोडक्ट आप प्रोसेस कर रहे तो उसका वेरिएबल कास्ट कितना होगा। एंड देन द सम ऑफ द फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, दैट विल बी द टोटल ऑपरेटिंग कास्ट। तो जितना प्रोडक्ट आपने एक साल में प्रोसेस किया हुआ है उस अमाउंट को उस पर डिवाइड कर लें, सो यू विल गेट द प्रोसेस चार्जेस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है। अ फार्मर हु ग्रेन अबाउट 500 बुशल ऑफ ग्रेन, बुशल जो है दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आपके पास वेट भी हो सकता है, क्यूबिक मीटर भी हो सकते हैं, पाउंड्स भी हो सकते हैं, किलोग्राम्स में भी हो सकते हैं। सो सपोज एक फार्मर है जो एनुअली 500 बुशल को ग्राइंड करते हैं, ठीक है। फॉर ग्राइंडिंग पर्पसेस द फार्मर हैव टू परचेस अ बुर मिल। हमने जो साइज रिडक्शन में इक्विपमेंट डिस्कस किया ना, तो बुर मिल उन्होंने परचेस किया हुआ है। बुर मिल जो है दैट इज ग्राइंडिंग 55 बुशल इन 1 आवर, ओके। और उसके साथ 6 हॉर्स पावर मोटर लगा हुआ है। इक्विपमेंट का जो न्यू कास्ट है दैट इज $450। सल्वेग वैल्यू उसकी नहीं है, मीन एट द एंड ऑफ द लाइफ टाइम इसकी वैल्यू 0 होगी। लाइफ टाइम कितना है? 19 ईयर है, ठीक है।
मेंटेनेंस, जब आप 100 बुशल को ग्राइंड करेंगे तो $0.5 का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा। नाउ 1 बुशल पे कितना ग्राइंडिंग कास्ट आएगा? ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, फिक्स्ड कास्ट फाइंड करना है। तो फिक्स्ड कास्ट में फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या होता है, डिप्रिशिएशन होता है। सो डिप्रिशिएशन क्या है, सी 1 साल के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, बिकॉज 1 साल में वो 500 बुशल प्रोडक्ट ग्राइंड कर रहा है, तो 1 साल पे कितना कास्ट आएगा, उस कास्ट को 500 पे डिवाइड कर लें, सो यू विल गेट दी कास्ट पर बुशल। अब देखें, न्यू कास्ट क्या है प्रोडक्ट की, इक्विपमेंट की, $450 है, सल्वेग वैल्यू 0 है, लाइफ टाइम उसकी 19 है। ठीक है, सो $23.6 पर ईयर डिप्रिशिएशन कास्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा, सो इंटरेस्ट हम जो नॉर्मली लेते हैं दैट इज हाफ ऑफ द न्यू कास्ट। सो इंटरेस्ट को आप सपोज अगर स्टैंडर्ड ले लें 4%, तो 4% ऑफ द हाफ कास्ट अगर आप यहां से कर लें, सो तकरीबन उससे $9 पर ईयर आएगा, दैट इज द इंटरेस्ट। ठीक है, मुराद आपने बहुत से पॉइंट्स मिस की, तो फिर आप काइंडली फिर वीडियो को रिवाइज कर ले। ठीक है, अच्छा, हाउसिंग, इंश्योरेंस और टैक्सेस, अगर डेटा गिवन नहीं है तो आप 1% से 1.5% ऑफ द हाफ ऑफ न्यू कास्ट ले सकते हैं। सो हाफ ऑफ न्यू कास्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.5%, 1.5% आप ले लें इसका, तो तकरीबन $3.36 होगा। ठीक है, $3.36 पर ईयर। सो नाउ दिस इज द टोटल एनुअल फिक्स कास्ट, कि 1 साल में फिक्स कास्ट कितना आपने अकाउंट करना होगा। सो दैट इज $35.96 अप्रोक्सीमेटली, नहीं बस ये फिक्स कास्ट होगा। क्लियर, अब ऑपरेटिंग कास्ट पे आ जाएं। सी ऑपरेटिंग कास्ट में फर्स्ट हमारे पास जो है फ्यूल है या पावर है एंड यूटिलिटीज है। तो क्वेश्चन में आप देखें, उसके साथ 6 हॉर्स पावर मोटर लगा हुआ है, पर हावर में 55 बुशल जो है वो ग्राइंड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर इस तरह आप इसकी काउंटिंग कर लें कि एक आवर के लिए 1 आवर में 55 बुशल ग्राइंड हो रहे हैं, तो 500 बुशल्स जो हैं वो कितनी अमाउंट में कितने टाइम में ग्राइंड होगा, या पर हावर के हिसाब से आप कर ले कि पर हावर में 6 हॉर्स पावर मोटर अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, 6 हॉर्स पावर मोटर है, तो 1 घंटे में उसका कितना खर्चा होगा। तो एवरेजली हम 1 हॉर्स पावर 1 किलोवाट हावर के बराबर लेते हैं, कि 1 हॉर्स पावर मोटर है तो पर हावर में उसका खर्चा जो है 1 किलोवाट हावर होगा। तो अब अगर 6 हॉर्स पावर मोटर है तो पर हावर में उसके कितने यूनिट्स होंगे, 6 यूनिट्स होंगे। ठीक है, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, तो अब इस बुक में जो है वो 2 सेंट है, सेंट इज द 100th पार्ट ऑफ द डॉलर। तो आप देखें पर हावर 12 सेंट जो है ये
फ्यूल का चार्जेस होगा या पावर का चार्ज होगा। ये क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है इसमें? क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज दी लेबर कॉस्ट। तो सी, एक हावर में हम 55 बुशल ग्रेन कर रहे हैं, तो नॉर्मली लेबर कॉस्ट जो होता है वो हावर बेस पे होता है। तो अगर एक लेबर है तो नॉर्मली एवरेजली हम पर हावर की $1.5 लेते हैं। सो दैट विल बी 125 सेंट पर हावर, दैट इज द लेबर कॉस्ट। सिमिलरली वो आपकी गिवन था कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, $0.5 है पर 100 बुशल। तो एक घंटे में हम 55 बुशल ग्राइंड कर रहे हैं ना, तो 55 बुशल के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा? अगर सी 100 बुशल ग्राइंडिंग के बाद $0.5 है मेंटेनेंस, तो 55 बुशल के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा? दैट विल बी $0.27। समझ आ रहा है कि नहीं? 100 बुशल के बाद मेंटेनेंस कितना है? $0.5 है। तो 55 बुशल ग्राइंडिंग के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा? $0.27। तो यहां पे आप देखें 0.27 मीन 27 सेंट पर आवर। अब देखें एक आवर में हम कितने बुशल ग्रेन कर रहे हैं? 55। और एक आवर का टोटल कॉस्ट कितना है? एक आवर का टोटल कॉस्ट मीन इसको जस्ट सम कर लें तो इतना आएगा 7 7 14 1 2 2 ओवर 2 4 4 6 1.64 या 164 सेंट डिवाइड बाय एक घंटे में हम 55 बुशल ग्राइंड कर रहे हैं ना, तो 165 या 164 डिवाइड बाय 55 तो तकरीबन 3 सेंट पर बुशल। ये क्या हो गया? दैट इज द ऑपरेटिंग कास्ट। ठीक है, ये $35.96 जो है ये फिक्स कास्ट है पर ईयर के लिए। तो एक साल में हमने 500 बुशल जो है इसको ग्राइंड करना होगा। तो इस पे अगर आप डिवाइड कर लें तो 7.2 सेंट आ जाते हैं, 7.2 सेंट पर बुशल। दैट इज फिक्स कास्ट। 3 सेंट पर बुशल इज ऑपरेटिंग कास्ट। इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें तो 10 सेंट पर बुशल, दैट इज द ग्राइंडिंग कास्ट। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, सिमिलरली एक और एग्जांपल है, एक पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है। जस्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर उसका सोल्यूशन जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। सपोज अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, डेयरी की मिल्क की जो प्रोसेस करते हैं। सपोज दे आर प्रोसेसिंग द मिल्क फ्रॉम रॉ कंडीशन इनटू पास्चराइज्ड कंडीशन। ओके, तो मिल्क को प्रोसेस करने के लिए रॉ कंडीशन से पास्चराइज्ड कंडीशन के लिए the distributory have purchased pasteurizer, sanitary pump, emptying the pasteurizer mean pump okay what milk जो है उसको पंप कर सके ना पास्चराइजर से, स्टीम बॉयलर फॉर हीटिंग द मिल्क एंड द कूलर। ठीक है, रॉ मिल्क होगा ना, उसको उसके लिए पास्चराइजर चाहिए, उसकी बॉइलिंग के लिए एक बॉयलर चाहिए, फिर उसकी कूलिंग के लिए एक कूलर चाहिए। तो एक पूरा डेयरी इंडस्ट्री होगा, इंटरप्राइज होगा ना। ठीक है,
अच्छा, डेटा क्या है? अब हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मच विल द ऑपरेशन एडेड टू द कास्ट पर क्वार्ट। ठीक है, ये क्वार्ट जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। क्वार्ट जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, आप लोग फिर उसकी कन्वर्जन देख लेके, एक क्वार्ट में कितनी लीटर होते हैं। सो वन क्वार्ट जो होते हैं ना, वन क्वार्ट दैट इज 1/4 टाइम ऑफ द गैलन। इन गैलन का जो फोर्थ पार्ट है इसको हम क्वार्ट कहते हैं। ठीक है, और एक गैलन में 4.7 लीटर होते हैं। तो अब हमने फाइंड करना है कि एक क्वार्ट पे कितना प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? पास्चुराइजर की जो वॉल्यूम है या पास्चुराइजर जो है पर डे में 90 गैलन मिल्क प्रोसेस कर सकता है। उसका एवरेज वॉल्यूम ये दैट इज द प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, 70 गैलन पर डे उस मिल्क है, उसमें 15 गैलन जो क्रीम बनता है ना मिल्क के ऊपर। ऑपरेटिंग टाइम क्या है? मीन एक दिन में पॉस्चराइजर को 1 आवर के लिए ऑपरेट किया जाएगा। नाउ दिस इज द डेटा कि उसकी न्यू कॉस्ट ये है, सल्वेग वैल्यू इज 5% ऑफ द इनिशियल कॉस्ट। सो इसका 5% क्या आएगा? $100। दैट इज द सल्वेग वैल्यू। इसकी लाइफ टाइम 8 ईयर है। मेंटेनेंस कितना है? 3% पर ईयर है। इतना उसकी स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। यहां से हम हाउसिंग कंडीशन कैलकुलेट करेंगे। 10 हॉर्स पावर इसके साथ जो है बॉयलर लगा हुआ है। हाफ 1/4 हॉर्स पावर मोटर है। सिमिलरली पंप जो है, पंप की न्यू कॉस्ट $140 है। सल्वेग वैल्यू 5% है, तो $7 उसका सल्वेग वैल्यू। लाइफ टाइम 8 ईयर है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज 3%। ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये पॉस्चराइजर के साथ सेट किया हुआ है। बॉयलर का जो डेटा है $400 उसका न्यू कॉस्ट है। उसके साथ ऑयल बर्नर लगा हुआ है तो $150 उसकी कॉस्ट है। ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा हुआ है, $150 उसकी कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट उसका कितना होगा? $700। सब्जेक्ट वैल्यू इज 6%। सो 6% ऑफ द न्यू कॉस्ट जो है वो तकरीबन $42 बन रहा है। दैट इज द सल्वेग वैल्यू। लाइफ टाइम 12 ईयर है। मेंटेनेंस 2.5% है पर ईयर, और इतना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। सिमिलरली कूलर जो है, न्यू कॉस्ट इज $500, लाइफ टाइम इज 13 ईयर, सल्वेग वैल्यू इज 2.5%। तो तकरीबन आई थिंक $10 बन रहा है जितना बन रहा है। दैट इज दी सल्वेग वैल्यू। मेंटेनेंस कॉस्ट इज 2%। इसके लिए इतना वाटर रिक्वायर्ड होगा, जो यूटिलिटीज है ना, इतना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाए। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेसिंग प्लांट होता है ना, इसमें पास्चराइजर है, पंप लगा हुआ है, बॉयलर है, कूलर है। तो इससे मिल्क प्रोसेस होगा, तो पर क्वार्ट आप पास प्रोसेस मिल्क पे कितना प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगा। अच्छा, तो 1 बाय 1 कर लेना। पास्चराइजर का डिप्रिशिएशन कॉस्ट, दिस इज पर ईयर। सिमिलरली इंटरेस्ट, हाफ ऑफ द न्यू कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4% स्टैंडर्ड ले ले। सिमिलरली उसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, दैट वाज गिवन। सो पर फीट के चार्जेस इतने हैं होते हैं पर ईयर के लिए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट इज ऑन एनुअल बेसिस, तो ये हाउसिंग चार्जेस होंगे। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस यू कैन टेक हाफ ऑफ द न्यू कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.5%। तो ये पास्चराइजर का फिक्स कॉस्ट होगा। अब पास्चराइजर जो है कितना मिल्क प्रोसेस कर रहे हैं पर ईयर, तो एक दिन के लिए गिवन है वो 90 गैलन है, तो एक साल में 360 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और उस पर डिवाइड कर लें। सो दैट इज दी, समझ आ रहे हैं ना, 90 गैलन पर डे प्रोसेस हो रहे हैं, 365 डेज हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो यूनिट क्वार्ट में आ जाएगा। नाउ
$354 को इस वैल्यू पे डिवाइड कर लें तो पर क्वार्ट पे इतने सेंट का पास्चुराइजर का फिक्स कास्ट होगा। ठीक है, अब पास्चुराइजर का जो पावर है, इतना मोटर लगा हुआ है, पर डे में 1 आवर के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, तो 1 हॉर्स पावर हम 1 किलोवाट आवर के बराबर लेते हैं, तो इतना किलोवाट आवर खर्च होगा ना 1 घंटे में। 1/4 हॉर्स पावर मोटर है तो 1/4 यूनिट खर्च होगा। नॉर्मली यूएसए में ये जो उस टाइम पे जिस टाइम पे ये बुक है ना, 2 सेंट पर यूनिट के चार्जेस है, आपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से लेने हैं। ठीक है कि नॉर्मली पाकिस्तान में पर यूनिट के चार्जेस कितने हैं। सो ये पावर के चार्जेस आ जाएंगे। पर आवर पे लेबर का कास्ट $1 से $1.25 होता है, तो ये लेबर कास्ट होगा। मेंटेनेंस गिवन है कि दैट इज 3% पर ईयर ऑफ द न्यू कास्ट, तो पर डे की हिसाब से कर लेना, बिकॉज बाकी कास्ट पर डे की हिसाब से है, पर हावर पे है, लेकिन इक्विपमेंट पूरी दिन में 1 आवर ऑपरेट हो रहे हैं, सो दैट कास्ट विल बी आल्सो बेस्ड ऑन पर डे। सो दैट इज द ऑपरेशन कास्ट ऑफ द पास्चुराइजर। तो एक दिन में आप कितना मिल्क प्रोसेस कर रहे हैं, 90 गैलन, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो इतने क्वार्ट, तो दिस कास्ट डिवाइड बाय 360, you will get this operation cost of the pasteurizer. This is the fixed cost of the pasteurizer per quart. This is the operation cost of the pasteurizer per quart. Similarly, pump के लिए fixed cost per quart, fixed operating cost of the pump per quart. Similarly, boiler के लिए fixed cost and operating cost. Similarly, cooler के लिए fixed cost per quart and operating cost per quart. अब हर एक इक्विपमेंट की fixed cost and operating cost per quart ऐड कर लें, so you will get कि 1.43 सेंट पर क्वार्ट पे प्रोसेसिंग का कास्ट आएगा। ठीक है, रिमेंबर $1 में 100 सेंट होते हैं और 1 सेंट में 10 मिली होती है। ठीक है, ये जस्ट यूनिट है उसकी, इस डॉलर्स की। समझ आ गई या इंडिविजुअली मैं एक्सप्लेन कर लूं? मीन सिंपल है, जस्ट फिक्स कास्ट में डिप्रिशिएशन काउंट करना होगा। तो डिप्रिशिएशन में क्या है, न्यू कास्ट, सल्वेग वैल्यू, लाइफ टाइम। इंटरेस्ट क्या है, हाफ ऑफ न्यू कास्ट मल्टीप्लाइड बाय 4% स्टैंडर्ड ले लें। हाउसिंग जगह गिवन है तो पर स्क्वायर फीट पे $1.25 काउंट कर लें। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो है दैट इज हाफ ऑफ द न्यू कास्ट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्डली 1.5%, तो इससे फिक्स कास्ट आ जाएंगे। पावर जो है वो हॉर्स पावर के साथ रिलेटेड है ना। 1 हॉर्स पावर नॉर्मली वी आर टेकिंग 1 यूनिट। ठीक है, तो फिर यूनिट जितने अमाउंट पे है उसके साथ कर लें। लेबर कर लें, लेबर का नॉर्मली 1 आवर जो लेते हैं वो $1 से $1.5 लेते हैं। मेंटेनेंस जो है दैट इज आल्सो गिवन सम परसेंटेज ऑफ द न्यू कॉस्ट, तो 365 इसलिए डिवाइड करते हैं कि डेली बेसिस आ जाए। ठीक है, तो फिर पर डे में आप जितना प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं उस पर डिवाइड कर ले तो आपके पास पर क्वार्ट के हिसाब से प्रोसेसिंग कास्ट आएगा। क्लियर हो गया?